हेलो स्टूडेंट। क्लास 10th में हमारा टॉपिक चल रहा है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पिछले वीडियो में हमने दो केमिकल रिएक्शन को पढ़ लिया है जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। आज हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे, दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Displacement reaction, we can say that a reaction in which a more reactive element displaces the less reactive element from its compound or solution, then it is called displacement reaction। यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है, तो वो रिएक्शन कहलाती है displacement reaction। For example, the reaction between iron and copper sulfate। जब आयरन की रिएक्शन हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के साथ करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बनता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस रिएक्शन में हम ये देख सकते हैं कि आयरन जो कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो अपने से लेस रिएक्टिव एलिमेंट कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करता है और डिस्प्लेस करके नया प्रोडक्ट बनाता है आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। यानी यहाँ पे आयरन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है और कॉपर की रिएक्टिविटी कम है, तो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। और जिस वजह से जैसे कि हमने अगर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में आयरन नेल डाली तो उससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद हम ये देखते हैं कि कॉपर सल्फेट जो कि एक ब्लू कलर सॉल्यूशन है, आयरन नेल डालने के बाद उसका कलर धीरे धीरे फेड होने लगता है, यानी वो डल होने लगता है और आयरन नेल के ऊपर कॉपर की कोटिंग होने लगती है। यानी आयरन नेल के ऊपर जो कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है वो आयरन नेल के ऊपर जमा होने लग जाता है। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है इसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर इसको हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट है वो डिस्प्लेस कर रहा है तो वो रिएक्शन होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इफ वी सी द अदर एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन द रिएक्शन इज Zn plus CuSO4, product are ZnSO4 plus Cu। in this reaction also the reactivity of zinc is more than the reactivity of copper, so the zinc displaces the copper from the copper sulfate solution and it forms zinc sulfate and copper। In the next reaction, the reaction of lead with copper chloride, and the products are lead chloride plus copper। Here also the reactivity of lead is more than the reactivity of copper, so lead displaces the copper from its solution and it forms lead chloride and copper। The next type of reaction is the double displacement reaction। It is a reaction in which the new compounds are formed by mutual exchange of ions between the reactant are called double displacement reaction। यानी इस रिएक्शन में क्या होता है, दो रिएक्टेंट स्पीसीज के बीच में आयंस का म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। दैट एक्सचेंज मे बी ऑफ कैटायंस और एनायंस। So cations and anions, when they mutually exchange their position between two compounds, then they form the two new product, and in that reaction both the ions are mutually exchanged, so we can say that it is a double displacement reaction। For example, the reaction of sodium sulfate with barium chloride gives barium sulfate and sodium chloride। In this reaction, the sodium sulfate, which is in aqueous phase, react with the aqueous solution of barium chloride, and both the solution are colorless, and when they form the product, that is barium sulfate which is in solid state plus sodium chloride which is in aqueous state, that barium sulfate formed during the reaction, which is the solid, is white in color। That means it deposit on the bottom of the container or the
test tube. So in that reaction we can see that the sodium and the barium present in the reactant molecules, they mutually exchange, and by their mutual exchange they form barium sulfate and sodium chloride. So this is the example of double displacement reaction. और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं, रिएक्शन में रिएक्टेंट ए बी, जिसमें ए कैटाइन है और बी एनाइन है, जब वो रिएक्ट करता है दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सी डी के साथ, जिसमें सी कैटाइन है और डी एनाइन है, देन बोथ द कैटाइन present in the molecules, that is A and C, they mutually exchange, and by their mutual exchange they formed the two new product, that is CB and AD. So that reaction is an example of a double displacement reaction. अब यहाँ पे दो रिएक्शन है हमारे पास. पहली जो रिएक्शन है वो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. इसमें क्या हो रहा है, एक सिंगल एलिमेंट जो है वो दूसरे कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर रहा है और उससे प्रोडक्ट बन रहा है. जैसे मैग्नीशियम कॉपर सल्फेट से रिएक्शन कर रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर बन रहा है, यानी यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसलिए इस रिएक्शन को हम बोलते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन. और दूसरी रिएक्शन जो है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट और डबल रिप्लेसमेंट रिएक्शन. इस रिएक्शन में देखो कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में, तो यहाँ पे कैल्शियम और हाइड्रोजन ये म्यूचुअल एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी दोनों साइड एक्सचेंज हो रहा है, तो उससे जो प्रोडक्ट बनेगा CaCl2 प्लस H2CO3, तो वो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यहाँ पे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हम जनरल फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हैं, A प्लस BC प्रोडक्ट बनेगा AC प्लस B, यानी A ने B को डिस्प्लेस किया है. जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में AB प्लस CD प्रोडक्ट बन रहा है AD प्लस CB, यानी A और C ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं और उससे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है. तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के टू टाइप्स हैं, सिंगल एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके बाद में आता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मीन्स एक रिएक्शन in which an insoluble solid is formed during the reaction which is called precipitate, यानी एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है जो कि प्रेसिपिटेट कहलाता है, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लाइम वाटर रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उसकी प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए हम उसको एक्वस सॉल्यूशन ऑफ लाइम वाटर के थ्रू पास आउट करते हैं. द लाइम वाटर इज एक्चुअली ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एंड व्हेन द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज पास्ड थ्रू द लाइम वाटर, देन its color becomes milky. So the milky appearance is due to the formation of calcium carbonate. So that reaction is called precipitation reaction. अब जो रिएक्शन देखें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, रिएक्शन किसके साथ हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो उससे प्रोडक्ट बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट प्लस H2O. यहाँ पे जो कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है वो वाटर इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, यानी ये एक प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ज़्यादातर रिएक्शंस में एक ऐसा इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बनता है जो कि प्रेसिपिटेट फॉर्म में रहता है, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ज़्यादातर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होती है. प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को इस तरीके से हम समझ सकते हैं, जैसे ये रिएक्शन है, पहला हमने एक सॉल्यूशन लिया है, कलरलेस सॉल्यूशन है Ki यानी पोटेशियम आयोडाइड का. दूसरे में हमने यहाँ पे
उसमें एक कलरलेस सॉल्यूशन डाला है लेड नाइट्रेट, जिसका कोई भी एक कलर नहीं है। जैसे ही दोनों को हम यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, तो मिक्स करने के बाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, उस प्रोडक्ट में बीकर के बॉटम में यहाँ पे येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्मेशन हो रही है। तो ये जो येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस यहाँ पे बन रहा है वो है लेड आयोडाइड, और जो एक्वस फॉर्म में यहाँ पे जो सॉल्यूशन फॉर्म में जो रह रहा है वो है पोटेशियम नाइट्रेट। यानी इस तरीके से यहाँ पे रिएक्शन हो गई Ki प्लस PbNO3 ट्वाइस, तो उससे प्रोडक्ट बन गया PbI2 प्लस KNO3। अब ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और साथ में ये क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमने पढ़ी अभी तक, कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो उन रिएक्शन को हम इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कॉम्बिनेशन हम ये कह रहे थे कि दो का जुड़ना, दो के जुड़ने से अगर सिंगल बन रहा है तो वो रिएक्शन क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। डीकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, एक के टूटने से एक से ज़्यादा का बनना, यानी जो रिएक्टेंट है वो एक है और प्रोडक्ट है वो एक से ज़्यादा बन रहे हैं, तो वो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि एक एलिमेंट है वो दूसरे को डिस्प्लेस कर रहा है, तो यहाँ पे इस एलिमेंट ने यहाँ पे कंपाउंड से इस एलिमेंट को डिस्प्लेस किया है। दैट मीन्स इस येलो एलिमेंट जो शो कर रहे हैं उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा है और रेड वाले की रिएक्टिविटी कम है, तो मोर रिएक्टिव ने लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दिया, तो प्रोडक्ट बन गया ये। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे रेड और ग्रीन ये जो एलिमेंट हैं ये म्यूचुअली एक्सचेंज हो रहे हैं, सॉरी रेड और येलो का म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ से रेड है वो ग्रीन के साथ चला गया और येलो है वो ब्लू के साथ आ गया, तो दो नए प्रोडक्ट बन गए। मीन्स ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके बाद में